Good morning, everybody. Today we will be learning something more related to alphabets, as we already know that there are 26 letters in the English alphabet that are A, B, C, D. So it starts from A and ends at Z. So now I'll be telling you something about vowels and consonants. The entire English alphabet has been divided into two parts. First is vowel and another is consonant. Out of these 26 letters, five letters are known as vowels, and those are A, E, I, O, and the alphabets like B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. So these are in all 21 letters. Those are known as consonants. So I repeat once again, the alphabet, that is 26 letters, that means they start from A and ends at Z. They've been divided into two different parts or segments. One is vowel, A, E, I, O, U, and another is consonant, that is all these, the remaining alphabets. Out of these 26, if we minus 5, that means we'll be getting 21 alphabets, and these are the alphabets if we take out these A, E, I, O, U. And now it is very important for us to know the sound of these vowels. हमें इनकी आवाज़ पहचाननी बहुत ज़रूरी है. हर एक लेटर की अपनी खुद की एक आवाज़ होती है. हाउ यू प्रोनाउंस इट, किस तरीके से उसको बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से कॉर्न, तो हमें पता है कि सी की आवाज़ हैज़ टू बी का, एन की आवाज़ हैज़ टू बी ना. एग्जैक्टली वैसे ही आज हम इन पांचों वॉवल्स की आवाज़ों को जानेंगे. सो वील बी मूविंग अहेड. द वेरी फर्स्ट इज द साउंड ऑफ ए. ए की जो आवाज़ निकलती है, इफ़ वी कंसिडर इट इन हिंदी, it is A. When I read out this term, it is A P P L E. हम इसको apple नहीं बोलेंगे. It is not A, it is A. Apple. So that means the sound of A is A. Another example is A N T. Ant. A T. At. A M. Am. So I repeat once again, the sound of A would be coming as A. Now we move ahead and we'll be coming towards the sound of E. That is A. Hindi wala A, AD wala. When I say this, that means अगर हम इसको पढ़ेंगे loudly. So what is written here? It is E G G. Egg. हम इसको इग नहीं पढ़ते हैं. We say एग. मतलब जो ई की आवाज़ आ रही है दैट इज ए, और जी की आवाज़ इज गा. नेक्स्ट एग्जाम्पल वुड बी एच ई एन. अगर आप फिलहाल एच को हटा भी दें, अगर जस्ट टू नो द साउंड ऑफ दिस ई, तो ई एन क्या हो जाएगा? एन. दैट मीन्स एच ई एन वुड बी hen. Likewise, net would be net. bed would be bed. leg would be leg. pet would be pet. Next we'll move towards the sound of I. I की आवाज़ क्या आती है? E. It is not बड़ी E. बहुत देर उस पर ताकत नहीं लगानी है. It is छोटी, हल्का सा E की आवाज़ आएगी. So the first example would be I double L. इल. इल का मतलब क्या होता है? बीमार. The second example would be LIP. We've got lips now, so it is just an example. I की आवाज़ क्या आ रही है? I. और P की आवाज़ is पा, तो LIP would be lip. IT it. SIT sit. INK ink. And IN in. So I hope the sound of A, E, I is clear to you. Next we'll be moving ahead towards the sound of O.
Okay, so when I say the sound of O, it is not POT. ओखली वाला, it is not. आप O की आवाज नहीं निकालेंगे. It has to be O. It is POT, pot. So when you say, तो आपके जो lips हैं उनमें ऑटोमेटिकली जब आवाज निकालेंगे तो O की आवाज आनी चाहिए. POT, pot. COT, cot. What is a cot? Cot means a खटिया. ठीक है, जो चारपाई होती है ना, that is a cot. DOG, dog. ROD, rod. LOG, log. What is a log? Log means a लकड़ी का टुकड़ा. लकड़ी का टुकड़ा होता है, that is called log. Then next example would be ON, on. TOP, top का मतलब सबसे ऊपर. So TOP, top. So the sound of O would be O. And lastly would be moving ahead with the sound of U. U की आवाज कैसी आती है? आ. छोटा आ की जो आवाज आती है is U in English. I'll just make it more clear with the help of an example. HUT. जब आप यू बोल रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप या की आवाज निकालेंगे. इट इज नॉट हुट. नो, इट इज नॉट हुट. इट इज HUT, हट. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, तो आ की आवाज आई ना, एच की आवाज हा आ गई और टी की आवाज क्या आ गई? टा आ गई. जो बीच में यू है हमारा, उसकी आवाज क्या निकल रही है? छोटे आ की. जल्दी से. हट. GUN, गन. NUT, nut. BUN, bun. Bun is what? Bun means a juda. Okay. Then HUG, hug. Hug means किसी को गले लगाना. JUG, jug. So basically in this video I just tried to make clear, it will be a very quick recap that we have to understand what are vowels and what are consonants. So out of these 26 letters, इन 26 letters में से हम किसी भी word को लिखते हैं तो vowel is a very important part of English. अगर हमने कोई भी term लिखा, for example if I write boy, तो you have to know whether B is a consonant or a vowel या O. तो आपको क्या करना है? You don't have to learn this entire consonant. नहीं याद रखने हैं, आपको सिर्फ इन 5 vowels को याद रखना है. What is this? A, E, I, O, U. आप ये याद रखेंगे. सबको ABCD आता है. बाकी के जो बचे हुए हैं अल्फ़ाबेट्स हैं या लेटर्स हैं वो सारे खुद ब खुद कॉन्सोनेंट हो जाएंगे. सो वॉवल इज बेसिकली प्रेजेंट इन एवरी वर्ड. आप कोई भी वर्ड पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल इवन इफ आई एम रीडिंग आउट द अल्फ़ाबेट, ये हेडिंग भी पढ़िए तो A इज़ अ वॉवल, देन अगेन A इज़ अ वॉवल हियर, E इज़ अ वॉवल. सो vowels are present in almost every word you write. और word क्या होता है? जब कई सारे letters मिल करके एक शब्द बनाते हैं. B अकेला एक लेटर खुद में है, O खुद में एक लेटर है, Y खुद में एक लेटर है. इन तीनों लेटर्स ने मिल करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाया है, तो उसको क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं. सो आई हैव ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ दीज वॉवल्स, वेयर एज कॉन्सोनेंट्स के लिए इफ आई वुड बी सेंडिंग अनदर लिंक, उसको आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा कि बाकी अल्फ़ाबेट्स की आवाज़ कैसे निकलती है. सो इट विल बी मोर हेल्पफुल टू यू. एंड देन दिस इज़ एन एक्सरसाइज वेयर आई जस्ट रीड आउट. इसकी क्लिक मैं आपको सेंड करूँगी. तो आई एम जस्ट रीडिंग आउट कि करना क्या है आपको. लुक एट द वर्ड्स एंड राइट द वॉवल्स इन द सर्कल. आपको ये वर्ड पढ़ना है एंड आई हैव मेड द सर्कल हियर. तो आपको अपनी कॉपी में एग्जैक्टली वैसे ही करना होगा. टेल मामा टू हेल्प यू आउट एंड यू विल बी राइटिंग द वर्ड. पहले आप ये हेडिंग लिखेंगे, ठीक है, एंड उसके बाद यू विल राइट दिस वर्ड, मेक आउट द सर्कल्स हियर इफ यू वांट, और यू कैन ड्रॉ एनी शेप यू फील लाइक, ठीक है. And in that case you will be reading the spelling. For example, I'll just give you one example. The first word is UMBRELLA. It is umbrella. तो umbrella में जितने भी vowels हैं आपको यहाँ लिखने हैं. Likewise zebra, CRO crow, CO co, DILE dial, crocodile. जो vowel मिल रहे हैं आपको यहाँ लिखेंगे. Aeroplane,
मदर। तो आपको जो इनमें वॉवल्स दिखेंगे विदाउट ममाज हेल्प, आंसर्स आपको खुद कर रहे हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट एक्सरसाइज वुड बी राइट कॉन्सोनेंट्स इन द बॉक्स। आई हैव रिटन फ्यू स्पेलिंग्स हियर। BAT बैट, जो भी कॉन्सोनेंट है आप बॉक्स में लिखेंगे। DEN डेन, डेन मीन्स अ गुफा जहाँ पे लायन रहता है। देन द थर्ड वन इज PARROT पैरट, LION lion, CAP कैप। सो आई विल बी सेंडिंग दिस इमेज, तो आप ये काम करके नोटबुक में यू विल बी सेंडिंग मी बैक। जब काम हो जाएगा तो आप मुझे ग्रुप में फ़ोटो सेंड करेंगे। थैंक यू सो मच।